ફિલ્ટર કરીશું. જે બી ક્વેશ્ચન્સ આવશે અહીંયા WhatsApp ચેટમાં તમને શેર કરી દઈશું. Greetings JCs. JCI Surat has successfully completed first session of monthly business training series at world's first of its kind Amazon Digital Kendra. अब डिजिटल केंद्रों का थाम के हाथ पैंडेमिक की बाधाएं पार कर एसएमबीज चले हैं एक सुनहरे कल की ओर. 36 entrepreneurs, service providers and businessmen were benefited through this training. Grateful to Director of Amazon Digital Kendra Mr. Sandeep Kantheria for explaining more than 10 services offered by their center to digitize businesses and services and serve local to global. We are grateful to Chairman of JCOM, JC's Chamber of Commerce for Zone 8 JC Komal Kumar Shah, for briefing the participants about JCOM. Congratulations to JCHGF Bhaskar Agarwal and JCHGF Keyur Dushi on receiving their HGF certificate and pin. Thankful to IPP JCHGF Pragati Dave, past Zone Officer JC Mayur Petigara and past JJ Chairperson JJ Sanyak Shah for their gracious presence. Also thankful to JCHGF Nitin Padhiyar, JC Fenil Waja, JC Hetvi Parik, JC Ekta Yagnik for conducting MOC, introducing Mr. Sandeep Kantheria, introducing JC Komal Shah and giving gracious vote of thanks respectively. આજે જેસીઆઈ સુરત દ્વારા બિઝનેસ એરિયામાં 12 મહિનામાં 12 પ્રોગ્રામની જે શરૂઆત કરવામાં આવી એનો પહેલો પ્રોગ્રામ જે છે કે તમે તમારો બિઝનેસ કઈ રીતે ઓનલાઈન લઈ જઈ શકો, આ ડિજિટલ યુગમાં કઈ રીતે તમે તમારા બિઝનેસને આગળ વધારશો, એના માટેનો જે પ્રોગ્રામ એમેઝોન ડિજિટલ કેન્દ્ર સુરત ખાતે રાખવામાં આવ્યો, એક ખૂબ જ સરસ આયોજન કરવામાં આવ્યું. લોકોને બિઝનેસ કઈ રીતે ઓનલાઈન લઈ જવાશે, એમેઝોન જે એની ટેગલાઇન છે કે આપણા ઘરની દુકાન અને તમારી પોતાની દુકાન કેવી રીતે બનાવી શકો, એના માટે જે સુરત દ્વારા પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, એક ખરેખર ખૂબ જ સરસ પ્રોગ્રામ રહ્યો અને આનાથી જેટલા પણ પાર્ટિસિપેટ્સ હતા એ બધાને જ ખરેખર ફાયદો થશે અને આવા જ સારા પ્રોગ્રામ જેસીઆઈ સુરતની ટીમ 2022માં કન્ટિન્યુઅસ આ મેમ્બર્સ અને નોન જેસી મેમ્બર્સ માટે લાવતી રહે, એના માટે ઓલ ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ. ફ્રેન્ડ્સ, આજે જેસીઆઈ દ્વારા સુંદર બિઝનેસ પ્રોગ્રામમાં એમેઝોન ઓનલાઈન માર્કેટિંગ કેવી રીતે કરવું એના વિશે આપણે આ પ્રોગ્રામમાં જાણ્યું. આ ટ્રેનિંગમાં ખાસ કરીને હું મારા બિઝનેસને એમેઝોન ઉપર લઈ જવાની ટ્રાય કરતો હતો, તો એમના તરફથી એક સરસ Completion and amazing response of our first session of monthly business training at Amazon Digital Kendra, JCI Surat brings you a second session on Facebook marketing. To introduce our today's trainer, I would like to hand over to our new, very active member, JC Anjali Shah. JC Anjali. હેલો, ગુડ ઇવનિંગ, નમસ્કાર. આપણા આજના બિઝનેસ ટ્રેનિંગ ઓફ ધ મંથના સ્પીકર
સેલ્ફ મોટિવેટેડ અને વ્યવસાય છે, જેઓ કોર્પોરેટ લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટેની પ્રતિબદ્ધતા સાથે લીડરશિપ એન્ડ હ્યુમન રિસોર્સ એક્સપર્ટાઇઝ સાથે સ્ટ્રોંગ વર્કિંગ બેકગ્રાઉન્ડ ધરાવે છે. તેમની મુખ્ય કુશળતા સેલ્સ એન્ડ માર્કેટિંગ, બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ, ઓપરેશન મેનેજમેન્ટ અને પીપલ મેનેજમેન્ટ છે. બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્સ, વીમા, રિયલ એસ્ટેટ, ઇવેન્ટ મેનેજમેન્ટના ક્ષેત્રમાં તેમના સંગઠનનો અનુભવ 25 વર્ષથી વધુ છે. તેઓ છેલ્લા 2 વર્ષથી સુરત ડિજિટલ માર્કેટિંગ સ્કૂલના માલિક તરીકેની ફરજ ભજવી રહ્યા છે, જ્યાં તેઓ ડિજિટલ માર્કેટિંગની કન્સલ્ટન્સી, બ્રેન્ડિંગ અને ટ્રેનિંગ પ્રદાન કરે છે. તેઓ વર્ષ 2015માં જેસીઆઈ સુરતના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ હતા. તેઓ જેસીઆઈ ઇન્ડિયા સર્ટિફાઈડ ટ્રેનર પણ છે. તેઓ ભારત વિકાસ પરિષદ અડાજણ બ્રાન્ચના ટ્રેઝરર તરીકે પણ કાર્યરત છે. તો આવકારીએ આજના ટ્રેનર જેસી વિકાસ પારેખને. થેન્ક યુ. Thank you, JC Anjali. The floor is yours, Vikas sir. Thank you very much, sir. Thank you, Anjali, for the good introduction. મારો આજનો વિષય છે ડિજિટલ માર્કેટિંગ, રાઈટ. માર્કેટિંગ આજની તારીખમાં બહુ જરૂરી છે કે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું માર્કેટિંગ હોય તો એ દરેક સેગમેન્ટમાં જે કામમાં આવે છે. આજે દરેક સેગમેન્ટને માર્કેટિંગની જરૂર છે. કોઈ પણ સેગમેન્ટ એવું નથી कि जिन्हें नवी लीड ना जोती हो. हर क्षेत्र में हम ये मान सकते हैं कि डेली कुछ ना कुछ नया चाहिए, कुछ ना कुछ नई लीड्स चाहिए, तभी जाके हम लोग अपना बिजनेस जो है वो एक्सपांड कर सकते हैं. अगर आज हमें डेली नई लीड्स नहीं मिलती है तो हमारा बिजनेस वैसे भी बहुत पीछे चला जाता है. तो नई लीड को कैसे जनरेट करना है, उसके सोर्सेस क्या है, क्या स्ट्रेटेजी आप यूटिलाइज कर सकते हैं नई लीड्स के लिए, तो सारा कुछ आज हम लाइव देखेंगे. मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि फेसबुक के माध्यम से हम लोग कैसे उसको एक्सपांड कर सकते हैं. पहले तो मार्केटिंग की अगर बात करूँ तो मेरा पिछला 25 इयर्स का एक्सपीरियंस रहा है मार्केटिंग में ही हमें. तो मार्केटिंग इज वेरी ह्यूज सब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है ये. और हर जो प्रोडक्ट है वो आप चाहे जितना भी अच्छा पैकिंग करो, कितना भी अच्छा उसका मैनेजमेंट करो या तो कंटेंट लिखो, लेकिन अगर उसका मार्केटिंग सही तरह से नहीं होता है तो कस्टमर मिलना बहुत मुश्किल होता है वो प्रोडक्ट. बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केटिंग के लिए, जैसे ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग. अगर मैं ऑफलाइन मार्केटिंग की बात करूँ तो बिफोर कोविड ज़्यादातर लोग ऑफलाइन मार्केटिंग में बिलीव किया करते थे. ऑफलाइन मार्केटिंग में हम लोग समझ सकते हैं कि जो रेगुलर कुर्तीज आती है उसमें अगर किसी ने दे दिया, पैम्पलेट्स डाल दिया, होर्डिंग्स डाल दिया, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है ऑफलाइन मार्केटिंग. बट उसका ड्रॉबैक है. मैं अगर एक एग्जांपल के साथ बताऊं तो मान लीजिए कि एक बिल्डर ने ऐड दिया है 2 BHK फ्लैट का, जिसकी प्राइस है 25 लाख रुपीज़. बहुत ही अच्छा पैम्पलेट उन्होंने डिज़ाइन करके दिया हुआ है. और जब भी वो पैम्पलेट मेरे घर पे आता है मॉर्निंग में, एट द सेम डे मुझे अगर अर्ली मॉर्निंग घर से निकलना पड़ा और वो पैम्पलेट अगर मेरे हाथ में नहीं आता है तो उनका एक पोटेंशियल कस्टमर हाथ से निकल गया, क्योंकि मुझे भी वही बजट में कुछ फ्लैट खरीदना था. और मेरे बाजू वाले जो है उन्होंने वो ऐड देखा, लेकिन रिसेंटली उन्होंने मेरे बाजू का फ्लैट परचेस किया हुआ था, तो भी उनकी जो वो लीड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जिसको ज़रूरत है उसने वो पैम्पलेट पढ़ा नहीं और जिसको ज़रूरत नहीं है उसने वो पैम्पलेट पढ़ा. सेकंड थिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग में ज़्यादातर देखा गया है कि वन वे कम्युनिकेशंस होता है कि अगर मैंने आज वो पैम्पलेट पढ़ा भी और मान लीजिए कि मैं किसी वजह से उनको कॉल नहीं कर पाया मेरे टाइट शेड्यूल की वजह से, तो भी उनका एक
अच्छा सा प्रॉस्पेक्ट वहाँ पे चला जाता है और वो मिस कर देते हैं। जबकि दूसरी साइड पे देखें तो यही जो ड्रॉबैक्स है वो डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी हद तक उसको रिजॉल्व करती है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है कि आप जिसको भी अपना टारगेट बेस बनाना चाहते हो उसको आप टारगेट बना सकते हो। आपकी जो प्रोडक्ट है ब्रांडिंग है उसका ए टू जेड अपने हिसाब से उसका मार्केटिंग कर सकते हो। तो ऑनलाइन मार्केटिंग आज की तारीख में बहुत ही अच्छा टूल रहा है लोगों के लिए, बिजनेसमैन के लिए, स्मॉल बिजनेसमैन के लिए, और जिसको भी ज़रूरत है नई लीड्स की उन लोगों के लिए। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप करोड़ों का बिजनेस ऑफलाइन करते हैं लेकिन आज की तारीख में अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो आप आज भी मार्केट में ज़ीरो हो। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस इतना फैलने लगा है, इतना तरक्की करने लगा है कि आज नहीं तो कल आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा और आपको ऑनलाइन माल बेचना ही पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन आपकी प्रेजेंस नहीं है तो आज ही आप ऑनलाइन पे आ जाइए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग दो प्रकार की होती है, एक तो पुल मार्केटिंग और पुश मार्केटिंग। कई प्रोडक्ट ऐसी होती है जिसको हम पुश करके बेच सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस का बिजनेस हो या तो फिर कोई क्लब मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग पुश मार्केटिंग कर सकते हैं। और पुल मार्केटिंग वो है जो सामने से लोग सर्च करते हैं, जैसे फूड बिजनेस हो गया। तो ऐसे बिजनेस है जो पुश मार्केटिंग और पुल मार्केटिंग दोनों हो सकता है, और दोनों सोशल मीडिया पे हो सकता है, पुल मार्केटिंग भी और पुश मार्केटिंग भी। बाकायदा आपकी प्रोडक्ट कौन सी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म उसमें यूज करना होता है। तो इस तरह से मार्केटिंग के दो पार्ट होते हैं कि पुल मार्केटिंग और पुश मार्केटिंग। वो पूरा जो है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, हमारे जो पास एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है वो है मोबाइल फोन, राइट। आज की तारीख में मोबाइल फोन है वो हम कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ते, 24/7 वो हमारे साथ होता है। तो जो भी एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर वो इमीडिएट कनेक्ट होती है कस्टमर के साथ, क्योंकि कस्टमर हमारा 24/7 उसके साथ रहता है और हमारी जो भी प्रोडक्ट रहती है वो इमीडिएट उसका रिस्पॉन्ड कर पाता है, तो उसको वो बाय या सेल कर सकता है। ये जो मोबाइल इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा वैसे देखा जाए तो उसका कैरेक्टर है, क्योंकि पूरा जो ऑनलाइन मार्केटिंग है वो 3 बेस के ऊपर चलता है। एक है आपका बिहेवियर, कि आपका बिहेवियर कैसा है। दूसरा है आपका इंटरेस्ट, कि आप कौन से सेगमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, आप कहाँ पे खाना खाने जाते हो, कहाँ पे घूमते हो, आपके बैंक में बैलेंस कितना है, आपका जो बैंक में आपका पासवर्ड है वो क्या है, आपका लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, वो सारे जो पैरामीटर है उसके ऊपर ये होता है। और तीसरा जो होता है वो जियोग्राफी। ये तीनों जो वर्टिकल है उसी के बेस पे आपको जो ऐड दिखाया जाता है वो ऐड होता है। इंटरेस्ट, आपका बिहेवियर और आपका जियोग्राफी, और इसी के ऊपर पूरा जो है वो सोशल मीडिया का ऐड डिपेंड होता है, बनता है। माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी बार हम लोग देखते होंगे कि अगर हम लोग ने कुछ भी सर्च कर दिया, लाइक न्यू मोबाइल्स या तो नई कार या तो कुछ भी फूड, आपने एक बार गूगल पे डाल दिया तो आपको पता होगा कि बार बार आपको रिटारगेटिंग करते रहेंगे। वही प्रोडक्ट हमें बार बार दिखता रहेगा। आप चाहे इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप चाहे लिंक्डइन पे जाते हो, आप चाहे ट्विटर पे जाते हो, आप चाहे फेसबुक पे जाते हो, या आप चाहे गूगल पे जाते हो। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है कि बार बार आपको रीमार्केटिंग किया जाता है कि आपने जो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया वो प्रोडक्ट आपको परचेस करना है, और गलती से भी अगर आपने ऐड टू कार्ट में कोई प्रोडक्ट डाल दिया और वहाँ पे पेमेंट नहीं किया, आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि बार बार आपको वही प्रोडक्ट एक ही बार दिखाया जाता है कि जब तक आप वहाँ पे पेमेंट नहीं करते हो तब तक आपको वो चीजें दिखाई जाती है कि आपको ये प्रोडक्ट को परचेस करना है। यानी कि वहाँ पे आमने सामने कोई फील नहीं होता है। जैसे हम लोग अगर कोई रिटेल कस्टमर शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे दुकानदार और हमारे बीच बातें होती है। यहाँ पे जो भी होता है वो पूरा आपके ग्राफिक पे डिपेंड करता है, आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, आपके डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, और इसी के बेस पे कस्टमर आपके दोस्त खाता है और डिसाइड करता है कि आपकी प्रोडक्ट उसको परचेस करनी है या नहीं करनी है। तो आपकी जो भी डिज़ाइंस है, आपकी जो भी कंटेंट है, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि सामने वाला जो बंदा है वो एक बार सोचने पे मजबूर हो जाए कि नहीं, इसमें ये प्रोडक्ट तो मुझे परचेस करना ही करना है। तो इतना स्ट्रांग आपका जो हेड कंटेंट है और आपकी जो डिज़ाइंस है वो होनी बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे मीडिया है सोशल मीडिया में और गूगल में जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, या तो गूगल पे। ज़्यादातर गूगल पे मैंने आपको जैसे बताया कि पुल प्रोडक्ट जो होती है, सामने से कस्टमर आते हैं वो गूगल पे आते हैं, और पुश प्रोडक्ट जो होती है वो चारों जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके ऊपर हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। उसके भी अलग अलग बेनिफिट्स है। जैसे कि अगर फेसबुक की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि चाइना पॉपुलेशन है, चाइना में जितना पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा लोग फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है, और उसमें से आपको एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है और उसमें से आपको आपका बिजनेस निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। इसके अलावा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। आज की तारीख में अगर आपका फैशन रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है या तो 30 एज ग्रुप के नीचे के कोई भी टारगेट को आप सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, उस रिलेटेड आपकी कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि पॉलिटिकल रिलेटेड है तो आप ट्विटर को यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको एम्प्लॉय चाहिए या तो फिर आपकी प्रोडक्ट हाई है, जैसे कि अगर मैनेजमेंट प्रोफाइल को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या तो सीईओ लेवल के लोगों को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, या तो कंपनी के ऑनर्स तो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर को आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो आप वो प्रोडक्ट को लिंक्डइन पे डाल सकते हैं, लिंक्डइन आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो ये चारों जो मीडियम है वो अपने अपने तरीके से है, उसका एज ग्रुप अलग अलग है, तो आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, आपको कौन से सेगमेंट को टारगेट करना है, उस हिसाब से आप वो प्लेटफॉर्म को चूज कर सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि कई बार हमें जो एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती है, स्पॉन्सर एड दिखाई देती है, वो एक टारगेट करके दिखाई जाती है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा कि हमें जो एड दिखती है वो हमें क्यों दिखती है। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्पॉन्सर एड दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि डिजिटल स्कॉलर की एडवर्टाइजमेंट है। अब ये ऐड मुझे क्यों दिखी, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाना है और वाई एम सी दिस ऐड। तो यहाँ पे उन लोगों ने पैरामीटर्स दिए हैं कि दिस ऐड इज बिटवीन 23 to 60 ईयर्स। तो मैं ये क्राइटेरिया में आता हूँ 46, मुझे ये ऐड दिखी, और प्राइमरी लोकेशन इन्होंने इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है।
इसीलिए मैं इंडिया में भी रहता हूँ और 23 से 60 साल के बीच में भी है। तो आज के बाद कभी भी आपको कोई भी ऐसी ऐड दिखती है स्पॉन्सर ऐड, तो वही दिखेगी तो आपने पास में उसको सर्च किया होगा या तो फिर आपने उसमें इंटरेस्ट जताया होगा। तो ये उसी के बेस पे आपको ये सारी ऐड दिखती है। जैसे कि एकेडमिक ऐड है, अगर मैं आपको दिखाऊं कि वाई मैंने डिजिटल मार्केटिंग मेरा ऑपरेशन है, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो इसीलिए मुझे ये ऐड दिख रही है। आई एम 18 ईयर्स ओल्डर और मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी ऐड ऐसी दिखी है और आप सर्च करते हो कि मुझे ये ऐड क्यों दिखी, तो इस तरह से आप उसको सर्च कर सकते हो कि वाई आपको ये ऐड दिख रही है, राइट। अभी मैंने जैसे आपको बताया कि आज हम लोग एक लाइव कैंपेन देखेंगे कि फेसबुक के ऊपर अगर आपको ऐड करनी है तो आप ऐड कैसे रन कर सकते हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप एक ही जगह से आपकी ऐड रन कर सकते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम की भी ऐड रन करनी है तो भी आप फेसबुक के ऊपर से रन कर सकते हो, क्योंकि अब तो दोनों सेम प्लेटफॉर्म हो गया है। कई बार हम लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने किया भी होगा शायद, कि फेसबुक हमें एक ऑप्शन देता है बूस्ट का, और हम लोग बूस्ट कर भी देते हैं अपनी ऐड को। लेकिन ज़्यादातर ऐसा मत कीजिए, बिकॉज ऑफ कि बूस्ट अगर आप करते हो तो उसमें देखा गया कि आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है जितना आपको चाहिए उतना, और बूस्ट तो करते हो तो वैसे ही पैसा आपका वेस्ट होगा, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। उससे अच्छा आज मैं जो आपको कैंपेन दिखाने के लिए जा रहा हूँ, उस हिसाब से अगर आप कैंपेन रन करोगे तो आपको एक अच्छा सा बेनिफिट मिलेगा, एक अच्छा सा आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। और आज ये कैंपेन के बाद आप अपनी खुद की ऐड आप अपने हिसाब से रन कर सकते हो। सेकंड, अगर आप बिजनेस ओनर हो, किसी डिजिटल मार्केटर को आप काम करते हो, भी आपको ये पता चलेगा कि वो सामने वाले के पास मुझे कैसे काम देना है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। मान लीजिए कि कोई टेक्सटाइल वाला बंदा है, उसका टेक्सटाइल में बहुत ही अच्छा मास्टरी है, ग्रिप है, और वो करोड़ों का बिजनेस वहाँ पे कर रहा है, और उन्होंने कोई डिजिटल मार्केटर रखा। अभी मान लीजिए कि डिजिटल मार्केटर को तो टेक्सटाइल के बारे में कोई कुछ भी पता नहीं है, तो हो सकता है कि जो वो कैंपेन रन कर रहा है उसमें गलती हो, तो ऐसा हो सकता है कि उसको जो रिजल्ट चाहिए उस हिसाब से रिजल्ट ना आए। उसके लिए ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग जो बिजनेस ओनर्स है उनके लिए क्लासेस भी चलाते हैं कि आपको खाली बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी रहता है, कि बेसिक में आप सामने वाले के पास कैसे काम ले सकते हो, क्योंकि टेक्सटाइल का नॉलेज तो उसके पास है ही, बट अगर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे फेसबुक के अंदर हम ऐड रन कर सकते हैं, राइट। तो मैं अपना स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। अभी फेसबुक में अगर आपको ऐड रन करना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, मेनू में एड्स में जाके, या तो फिर यहाँ पे सर्च बार में जाइए और एड्स मैनेजर में लिखिए। यहाँ पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ऐड रन करनी है तो उसके लिए आपके अकाउंट के अंदर का पेज होना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूँ पेज। जैसे कि ये बिजनेस पेज हो गए सारे, तो ये पेज आपको बनाना होगा, तभी आप आपका जो ऐड है वो रन कर पाएंगे। आपके अकाउंट से आपका ऐड रन नहीं होगा, तो इस तरह से आपको आपका पेज बनाना पड़ेगा। और पेज भी आपको ऐसा बनाना है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाए, आपकी सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाए। यहाँ पे एड्स मैनेजर लिख के आप एड मैनेजर पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि एड मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे मेरा अकाउंट, मैं अकाउंट में जाता हूँ।
जैसे ही आप अकाउंट के अंदर जाएंगे आपको ये स्क्रीन दिखेगा, ऐसा एक स्क्रीन आएगा आपके पास जहाँ पे आपको यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं पूरा कैंपेन। तो आपको क्रिएट में जाना है, फेसबुक इतने ऑप्शंस देता है आप ऐड बनाने के लिए। जैसे कि अवेयरनेस कैंपेन बनाया है, मान लीजिए कि आप ऑफलाइन में कोई शॉप ओपन करते हैं तो हम 500,000 लोगों को इनविटेशंस देते हैं, उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, सुबह से शाम तक पूरी भीड़ रहती है। तो यहाँ पे भी जब आप पेज बनाते हो तो वो पेज को आपको लोगों तक पहुँचाना बहुत ही जरूरी होता है। उसके लिए फेसबुक ने किया है 2 कैंपेन, एक तो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन और एक रिच कैंपेन, राइट। रीच यानी कि मैक्सिमम लोगों तक आपका जो कैंपेन है वो पहुंचता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको बजट स्पेंड नहीं करना होता है, बहुत कम बजट के अंदर आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक बार रीच होने के बाद अगर आपकी ब्रांड अवेयरनेस रेगुलरली बढ़ानी है तो आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हैं। उसके बाद होता है कंसीडरिंग कैंपेन। कंसीडरिंग में आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको ट्रैफिक लाना है तो उसके लिए ट्रैफिक कैंपेन है। अगर आपकी पेज या वेबसाइट के ऊपर आपको एंगेजमेंट लाना है लोगों का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई प्रोडक्ट को आपने देखा है और वही लोगों को आपको बार बार रीटारगेट करना है, तो उनको एंगेज करना है तो आप एंगेज कर सकते हो। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशंस है जिसको आपको लोगों को डाउनलोड करवाना है तो आप एप्लीकेशन कैंपेन रन कर सकते हो। अगर आप यूट्यूबर हो और आपके बहुत ही अच्छी वीडियो है, उसके फॉलोअर्स बढ़ाने हैं आपको, तो आप वीडियो व्यूज भी करवा सकते हो लोगों को। अगर आपको लीड जनरेट करना है, लीड जनरेट में आप लोगों ने भी किया होगा, कोई ऐड देख के उसके ऊपर अपने पर्सनल डिटेल आप शेयर करते हो, जैसे कि आपके मोबाइल, आपका ईमेल आईडी, आपका नाम, आपको कौन सी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स है। वो लीड जनरेशन कैंपेन है जिसमें हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स या पूरी डिटेल्स है वो सामने वाले तक पहुंच जाती है। ये बहुत ही अच्छा कैंपेन है और ज़्यादातर लोग आज यही करते हैं। अगर मैसेंजर पे किसी को डाइवर्ट करना है, चाहे वो इंस्टाग्राम मैसेंजर हो या तो फेसबुक मैसेंजर, तो आप मैसेंजर कैंपेन भी रन कर सकते हैं। और कन्वर्जन, डायरेक्ट वेबसाइट पे अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है और आपको कन्वर्ट करना है तो ये 3 ऑप्शंस आपके अवेलेबल है। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है रीच कैंपेन। हम लोग रीच कैंपेन से शुरू करेंगे। जैसे ही आप रीच पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रीच कैंपेन आ गया। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आपका विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम देना है, जैसे कि मेरी कंपनी है सूरत डिजिटल मार्केटिंग स्कूल, उसका मैं नाम दे देता हूँ और आज की तारीख डाल देते हैं। इसके बाद आता है कि स्पेशल कैटेगरीज। स्पेशल कैटेगरीज में अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट ऑफर कर रहे हो, हाउसिंग लोन वगैरह इंश्योरेंस ऑफर कर रहे हो, या तो कोई सोशल पॉलिटिकल पार्टीज का कैंपेन कर रहे हो, तो ये सारा सिलेक्ट करना होता है। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो अगेन नीचे आते हैं, यहाँ पे बाइंग टाइप मतलब ऑप्शंस दिखा रहा है, कैंपेन की डिटेल वो हम रहने देते हैं। यहाँ पे नीचे जो ऑप्शंस वो ए/बी टेस्ट है और बजट ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप मल्टीपल कैंपेन कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी रीच कैंपेन चुना, उसके अलावा मैं अगर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन कर रहा हूँ या तो लीड जनरेशन कैंपेन साथ में कर रहा हूँ, और 2 कैंपेन का अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है कि कौन से कैंपेन ने मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, तो आप ए/बी टेस्ट ऑन कर सकते हो। यहाँ पे हम एक ही कैंपेन रन कर रहे हैं तो ए/बी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। और बजट यहाँ से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल कैंपेन है तो, मल्टीपल कैंपेन नहीं है तो यहाँ पे बजट ऑप्टिमाइज करने की जरूरत नहीं है, हम आगे बजट उसको सेट कर सकते हैं। देन गो विथ नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो, यहाँ पे आपको आपका पेज सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन से पेज के ऊपर आपका ऐड रन करना चाहते हो। जैसे ही आप मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरा जो पर्सनल पेज है
उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। मैंने जैसे बताया था बजट आप आगे से सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आप बजट सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शंस देते हैं, होता है फेसबुक, या तो आप डेली बजट सिलेक्ट करो या तो फिर लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करो। लाइफ टाइम बजट क्या होता है कि मान लीजिए कोई कैंपेन आपने 29 तारीख से शुरू किया और उस एंड डेट है वो आपने रखा हुआ है यहाँ पे फरवरी की 3 तारीख, राइट। तो ये हुआ लाइफ टाइम बजट। एक ही कैंपेन के लिए आपने मान लीजिए 1000 रुपीज स्पेंड कर दी है। तो यहाँ पे आपको एस्टिमेट डेली रिजल्ट दिखाएगा। 33 के से 67 के बीच में आपका डेली रीच होगा। अब जैसे ही अगर बजट बढ़ाओगे, मान लीजिए कि आपने 1500 का बजट किया है और सेम दे रखा है, तो आपका रीचेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे कम कर दिए तो भी आपका रीचेस बढ़ जाएगा। यानी ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बजट कितना बढ़ाना चाहते हो, कितने ढीला रखना चाहते हो। उसी हिसाब से एस्टिमेट यहाँ पे आपको रिजल्ट देगा कि इतने लोगों तक आपका जो कैंपेन है वो पहुंच सकता है। अभी 1500 में अगर मैं 3 दिन का कैंपेन चलाता तो मैं 60,000 से 1,72,000 लोगों तक पहुंच सकता हूँ। तो इस तरह से पूरा जो बजट है वो हो सकता है। अगर आप डेली में जाना चाहते हो तो डेली में भी आप जा सकते हो, जितने का भी आप बजट डालना चाहते हो पर डे का, उस हिसाब से यहाँ पे एस्टिमेट रीच दिखाएगा। देन आता है यहाँ पे लोकेशन, कौन से लोकेशन के ऊपर आप ऐड दिखाना चाहते हो। यहाँ पे पीपल लिविंग इन दिस लोकेशंस, यहाँ पे पूरा इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। मैं इंडिया को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी जो प्रोडक्ट है वो खाली सूरत के लिए अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे सूरत लिखूंगा और सूरत सिलेक्ट कर दूंगा। सूरत के अंदर अगर आपको कितने किलोमीटर का रेडियस में लेना है वो भी फेसबुक आपको दिखाता है। 17 किलोमीटर से लेके आप 80 किलोमीटर के रेडियस में आपका ऐड दिखा सकते हैं। और रेडियस के हिसाब से भी यहाँ पे आपका एस्टिमेट जो है वो आगे पीछे होता है। देखिए तो यहाँ पे ये भी ऑप्शंस है कि मुझे कौन से लोकेशंस पे अपना ऐड दिखाना है। अभी मान लीजिए मैंने पूरा सूरत यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट ऐसा है कि मुझे कुछ एक जगह पे अपना ऐड नहीं दिखाना है। जैसे कि अडाजन में मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना है, तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा यहाँ से 395009 जो हमारा पिन कोड है अडाजन का। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे अडाजन का इतना एरिया है तो निकल जाएगा, वहां पे मेरी ऐड नहीं दिखेगी। तो इस तरह से भी आप इंक्लूड एक्सक्लूड सिटी में कर सकते हो ताकि आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सको। फिर आता है एज का। मेरी प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे कौन से एज ग्रुप को टारगेट करना है। 20 से लेके 58 इयर्स के बंदे को मैं टारगेट करता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे 30-35 के बाद का किसी को टारगेट करना है, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। वो पूरा आपकी प्रोडक्ट और आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। फिर यहाँ पे आता है जेंडर। आप मैन को सिलेक्ट करना चाहते हो, वीमेन को सिलेक्ट करना चाहते हो, या दोनों को सिलेक्ट करना चाहते हो। प्रोडक्ट कौन सी है। अगर कुर्तीज वगैरह प्रोडक्ट है तो वो मेन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो भी वीमेन के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो आप वहाँ पे वीमेन सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मल्टी प्रोडक्ट है जैसे कि कार गैरेज का हो गया या तो कुछ भी हो गया, आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। ये पूरा जो है वो आपके हाथ में रहता है। मैंने जैसे आपको बताया था कि वाई आई सी दिस एड, वहाँ पे आपको मैंने क्राइटेरिया बताया था। तो ये जो क्राइटेरिया आप सिलेक्ट करते हो तो वहीं पे दिखता है कि कौन से बेसिस के ऊपर आपको ये ऐड दिखाई जाती है। तो जो क्राइटेरिया आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो उसी के बेस पे आपको वहाँ पे ऐड दिखती है। अभी जैसे डिटेलिंग टारगेट, आप
कौन से सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हो, राइट। तो वो आपको यहाँ से यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जैसे कि स्मॉल बिजनेस ओनर टारगेट करना चाहता हूँ, इसके अलावा टारगेट करना चाहता हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा मैं टारगेट करना चाहता हूँ स्कूल और यूनिवर्सिटी को, इसके अलावा मैं टारगेट करना चाहता हूँ बिजनेस ओनर, तो रिटेल पेज एडमिन, तो ये हमारा टारगेट ऑडियंस होगा जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। और उसी के बेस पे यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आया कि अगर मैं 300 रुपया पर डे बजट लेके चलता हूँ और 3 दिन तक मेरी ये ऐड चलेगी, तीन दिन तक मेरी ऐड चलती है यहाँ पे सूरत में, अडाजन के अलावा मैं अगर कहीं पे ऐड दिखाता हूँ जिसका एज ग्रुप है 20 से लेकर 58 साल तक का, और सारे दोनों जेंडर को मैं अगर अपनी ऐड दिखाता हूँ तो अप्रोक्स कितने लोगों तक मेरी ऐड पहुंचेगी पर डे में। तो ये पूरा हमारा जो है वो कैंपेन बन गया। अभी मेन होता है प्लेसमेंट, कि आपको उसको प्लेसमेंट कहाँ पे करना होता है। यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का भी ऑप्शंस दिया हुआ है और मैनुअल प्लेसमेंट का भी ऑप्शंस दिया हुआ है। जैसे ही हम लोग मैनुअल प्लेसमेंट में जाते हैं तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप इंस्टाग्राम पे ऐड करते हो तो इंस्टाग्राम से करने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप फेसबुक से ही कीजिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस फेसबुक देती है कि आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैसेंजर पे और ऑडियंस नेटवर्क पे आप ऐड कर सकते हो। नीचे उसका फीड दिया हुआ है कि फेसबुक फीड में आपकी ऐड दिखेगी, इंस्टाग्राम पे दिखेगी, फेसबुक मार्केट प्लेस पे आपकी ऐड कैसे दिखेगी वो भी यहाँ पे डेमो आ जाएगा। तो इस तरह से आप जब भी सिलेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी ऐड कहाँ पे दिखानी है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इंस्टाग्राम पे मेरी ऐड नहीं दिखानी है तो आप यहाँ से इंस्टाग्राम रिमूव कर दो, आपकी ऐड इंस्टाग्राम पे नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मेरी ऐड ऑडियंस नेटवर्क में नहीं जानी चाहिए तो ऑडियंस नेटवर्क पे आपकी ऐड नहीं जाएगी। लेकिन ज़्यादातर आप इसको ऑटोमेटिक ही रखिए कि कहाँ पे फेसबुक चाहे वहाँ पे अपनी ऐड दिखा सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो बेस बना लिया है कि हमारी ऐड का बजट क्या होगा, हम कहाँ पे दिखाएंगे, कौन से रीजन को दिखाएंगे, वो सारा कुछ। अभी हम जो करेंगे वो ऐड कैसी होनी चाहिए उसके बारे में है। यहाँ से अगर आपको पेज चेंज करना है तो आप पेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टाग्राम अब तक कनेक्ट है तो इंस्टाग्राम भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो दोनों पे एक ही साथ आपकी ऐड दिखेगी। जैसे आप नीचे आएंगे ऐड सेटअप करना है तो आपको सिंगल इमेज या वीडियो डालना है, आपको पर्सनल इमेज डालनी है तो कलेक्शन डालना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे
यहाँ से आप आपकी इमेज डाल सकते हो, एडिट मीडिया पे जाइए, यहाँ से कोई भी इमेज आप ले सकते हो। ये मेरी सारी बनाई हुई है। अगर आपके पास ड्राइव में है तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो उसको, और जहाँ पे भी आपकी इमेजेस है वहाँ से आप उसको उठा सकते हो। मैं ये ऐड ले लेता हूँ। ये आपकी इमेज सिलेक्ट होगी, बाजू में आपको दिख रहा होगा कि आपकी ऐड जो है, स्पॉन्सर ऐड मैंने जो आपको दिखाई दी, वो कैसी दिखेगी। इस तरह से आपकी जो है पूरी ऐड दिखेगी। इसके बाद यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट लिख सकते हो, या आप जितना भी चाहो उतना यहाँ पे लिख सकते हो, जितना कैरेक्टर में डालना चाहते हो, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स वो सारा आप यहाँ पे डाल सकते हो, ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगर आपकी वेबसाइट का यूआरएल है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे हेडलाइन डालना बहुत जरूरी होता है। हेडलाइन जो है वो होता है आपका कैश पॉइंट, कि लोग आपकी ऐड कैसे देखेंगे। यहाँ पे आप लिंक डाल दीजिए। यहाँ पर ऑल बटन जो है भाई आपको कोटेज चाहिए या तो सेंड मैसेज करना है, ऑर्डर करना है, तो वो आप कर सकते हैं। मार्केटिंग यहाँ पे आ गया, तो हम लोग टैगलाइन में लिखा था, यहाँ पे बहुत कंपनी आ गया, यहाँ पे पेज हम लोग सिलेक्ट कर दिया, यहाँ से गेट कोड आ गया। ये सारा कुछ हो जाने के बाद यहाँ पे वेबसाइट का आपने पिक्सल डाला हुआ है तो उसको डाल सकते हैं, ताकि पिछले 3 महीने 6 महीने जिन्होंने वेबसाइट देखी है और प्रोडक्ट नहीं की है उसको भी हमारी ऐड दिखेगी। और जैसे ही आप यहाँ से पब्लिश करते हो तो आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। इस तरह से बहुत ही सिंपल वे में आप अपनी ऐड बना सकते हो। ये रिव्यू में जाएगी, 3 या 4 घंटे में आपकी ऐड जो है वो कस्टमर को दिखना शुरू हो जाएगी। इस तरह से आप पूरी जो ऐड है वो खुद की बना सकते हो। अगर आपको सारी ऐड की कंटेंट चाहिए, जैसे कि लीड जनरेशन से, मैसेंजर से, ब्रांड अवेयरनेस से, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है सूरत DMS, उसमें आप सारे वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पे सारे कैंपेन्स अवेलेबल हैं और आप वहीं से आपकी ऐड बना सकते हो। इस तरह से हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा कैंपेन रन कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऐड बना सकते हैं, नए नए लोगों तक पहुँच सकते हैं, नए लीड जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आज देखिए कोई भी बंदा अगर आपका पर्सनल नंबर देता है या पर्सनल डिटेल्स आपके साथ शेयर करता है, इट मीन्स कि वो 50% आपकी प्रोडक्ट के साथ एग्री है, तभी जाके वो आपको पर्सनल डिटेल्स शेयर करता है। अभी बाकी का जो काम है वो हमारा है कि उसको कैसे कन्विंस करें
उसको कैसे डील क्लोज करें, क्योंकि बाद में वो मिलेगा जब हमारी पर्सनल मीटिंग्स होती है या तो हमारे कॉल्स जाते हैं कि हमारी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, हमारी प्रोडक्ट कैसी है और हमारा कन्विंसिंग पावर क्या है, उसी के ऊपर वो बंदा क्लोज होता है। अगर कंपैरेटिवली आपका रेट चलता है तो वो हो सकता है कि वो बंदा आपकी प्रोडक्ट ना भी ले। तो इस तरह से पूरा कैंपेनिंग होता है। लेकिन यकीन मानिए डिजिटल मार्केटिंग में जो टिप्स आती है वो 100% एक्यूरेसी के साथ आती है। 20-30 का रेशियो यहाँ पे भी कर सकते हैं। पीछे जो लोग हैं वो लोगों ने जो फॉर्म किया था वो हमने नहीं किया था, तो हमें वो पसंद नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। बट ज़्यादातर यहाँ पे जो भी कस्टमर आते हैं वही नवीन कस्टमर आते हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिल सकता है यहाँ से। सेकंड, मैंने जैसे बताया शुरुआत कि अगर आप ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं तो आपने जितना भी बजट डाला है वो आपका चला जाएगा, आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे वो बजट स्पेंड हुआ है। अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग में 1 रुपया भी डाला हुआ है तो 1 रुपया भी आपको पता चलेगा कि भाई ये जो 1 रुपया है वो कहाँ पे यूटिलाइज हुआ है, कौन से एज ग्रुप में मेरी ऐड दिखती है, कौन से मीडियम में मेरी ऐड देखी गई है, जैसे कि डेस्कटॉप पे देखी गई या तो मोबाइल में देखी गई है, कौन सी जियोग्राफी में मेरी ऐड देखी गई है, कौन से जेंडर में मेरी ऐड देखी है। तो आने वाले कैंपेन्स में आप अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो आपकी ऐड में। हर एक पैसे का यहाँ पे आपको हिसाब मिलता है कि आपका एक एक पैसा जो ऐड में जा रहा है वो कहाँ पे खर्चा हो रहा है और फेसबुक आपकी जो ऐड है वो कहाँ पे शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है, कौन से सेगमेंट में आपका मतलब इंस्टाग्राम पे आपके ज़्यादा दिख रही है या तो फेसबुक पे आपकी ऐड ज़्यादा दिख रही है। तो कुछ एक महीनों के बाद अगर आपकी ऐड इंस्टाग्राम पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ आप इंस्टाग्राम के ऊपर आपका ऐड कीजिए, जहाँ पे आपका बजट जो है भी यूटिलाइज होगा और आपको टारगेट पब्लिक आपको वहाँ से अच्छी तरह से मिल सकती है। तो इस तरह से आप पूरी जो ऐड है वो रन कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो, राइट। तो ऑलमोस्ट मेरा जो सेशन है वो यहाँ पे एंड होता है। बाकी किसी क्वेश्चन से पहले से तो मुझे पूछ सकते हैं। Sure, sir. Amazing insights आपने दिए सर, like starting from why digital marketing is important and कैसे हम लोग plan कर सकते हैं geographically, gender wise also, using our pin code also, after understanding the customer's view. कुछ questions sir viewers के end से आए हैं, so I'll pitch it to you one by one sir. First question is क्या ज़्यादा ज़रूरी है, फेसबुक पे अपना अकाउंट होना है, फेसबुक पे पेज होना है? अकाउंट के अलावा आप पेज नहीं बना सकते हो, तो दोनों जरूरी है। अगर आपका अकाउंट है तभी आपका पेज बनेगा और बिजनेस के लिए अब पेज होना बहुत जरूरी है। आप अकाउंट पर ऐड रन नहीं कर सकते, तो दोनों जरूरी है, आपका पेज भी हो और आपका अकाउंट भी हो। अकाउंट आपका पर्सनल हो सकता है लेकिन पेज जो है वो बिजनेस पेज होना चाहिए, जिसमें आपकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो पीछे से ही बंदा आपकी ऐड देखेगा वो सीधा लैंड करेगा आपके पेज के ऊपर। अगर आपके पेज पे उसको मजा नहीं आएगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो वो इमीडिएट विड्रॉ हो जाएगा और आपकी जो प्रोडक्ट है वो शायद परचेज ना भी करे। इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि आपका पेज भी एक अच्छा कंटेंट वाला होना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका कॉन्टेक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपका डायरेक्शंस, कि जो भी फर्म का नाम है, आप क्या सर्विस देते हो, तो सारी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने आप फेसबुक पे ऐड कैंपेन एग्जीक्यूट करने का समझा है कि उसी के साथ में आप कैंपेन को बूस्ट करने की भी बात कर रहे थे। Yes. When is the exact time to boost an ad campaign? सिर्फ बूस्टिंग के पीछे मतलब आई एम श्योर कुछ मॉनेटरी टर्म्स भी होंगे फेसबुक के। सो व्हेन शुड वी स्टार्ट बूस्टिंग? जब भी हमको लाइक्स मिलने ज्यादा स्टार्ट हो कि नहीं, कस्टमर इसके ऊपर ज्यादा पिच कर रहे हैं, ज्यादा लुकआउट कर रहे हैं, या फिर पहले से ही वी शुड बूस्ट द पर्टिकुलर ऐड? नहीं, आप कभी भी आपकी कैंपेन रन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। नया पेज अगर आपने बनाया तो भी आप अपना कैंपेन रन कर सकते हो, ऐसा जब नहीं है कि लाइक्स है। क्योंकि कैंपेन जो होता है वो अदर देन के फॉलोअर्स के लिए होता है।
कि आपके जितने भी फॉलोअर, मान लीजिए कि 1000 फॉलोअर्स है आपके पेज के ऊपर, लाइक्स है, तो आप रेगुलर पोस्टिंग करोगे वो आपके लाइक्स वाले को दिखेगी, आपके जितने भी फॉलोअर्स है। लेकिन आप टारगेट कर रहे हो उसके अलावा के लोगों को जहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए आपको कैंपेन करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो टाइमिंग्स बेस अगर आप बोलो तो जो भी आप पोस्ट डालो, कैंपेन करो, मॉर्निंग 8 को करो या तो रात को 8 बजे करो। उसका टाइमिंग इस हिसाब से होता है कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलना होता है वो वही टाइम पे होता है, क्योंकि सुबह 8 बजे अगर आप देखो तो लोगों को चाय पीने का टाइम होता है, वहाँ पे मैक्सिमम लोग मोबाइल पे बैठते हैं। शाम को 8 बजे खा खाने के बाद 8 से 10 लोग फ्री होते हैं। आप कोई भी पोस्ट डालोगे और उसका अगर आप वैल्यूएशंस निकालोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग रात को 8 से 10 के बीच में आपको अवेलेबल मिलेंगे, या तो सुबह 8 से 10 के बीच में अवेलेबल मिलेंगे। तो कोई भी पोस्ट अगर आप डालते हो तो ये 2 टाइम डालो, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। परफेक्ट परफेक्ट। मतलब ये चीज भी मैटर करती है टाइमिंग की, कौन से टाइम पे। डेफिनेटली। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज मोर इम्पैक्टफुल, ज्यादा क्या इम्पैक्टफुल रहता है एक पोस्ट के पीछे, उसका कंटेंट जो लिखते हैं, उसकी इमेजेस या फिर उसके मतलब इमेज या फिर एक वीडियो का पोस्ट? सी ज्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है उसमें वीडियो में लोग देखना पसंद नहीं करते। अगर 60 सेकेंड्स का भी वीडियो है ना तो उसको अवॉइड करते हैं, लोगों के पास उतना भी टाइम नहीं। ज्यादा जो इफेक्ट है वो इमेज है और कंटेंट भी उतना ही इफेक्टेड है। अगर आपकी इमेज अच्छी है लेकिन आपका कंटेंट पुअर है तो उसमें भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है लेकिन आपने इमेज में जो आपकी ऑफर है उसको सही तरीके से नहीं दिखाई है तो वो कैंपेन भी फेल होने के चांसेस बहुत है। तो इमेज भी इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि पहली बार देखने के बाद हमें लगे कि नहीं, कि जो ब्रांड है उसके ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, या तो ये जो बंदा दे रहा है वो जेन्युइन दे रहा है। और साथ में कंटेंट कि भाई क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या सर्विस एड ऑन हम लोग दे रहे हैं, हमारी यूएसपी क्या है ये प्रोडक्ट के रिलेटेड, तभी जाके। क्योंकि जैसे आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम शॉपकीपर के पास जाते तो फील करते हैं प्रोडक्ट को, यहाँ पे फीलिंग सेगमेंट नहीं, एक खाली इमेज के ऊपर आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है। और वही कंटेंट और वही इमेज आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला इमीडिएट आपको परचेस करने के लिए मजबूर कर दे। क्योंकि अगर हमारी टेंडेंसी देखे तो हम भी कोई ऐड पहली बार आती है तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, फिर दोबारा आती है तो उसके थोड़ा ट्रस्ट बढ़ता है। थर्ड टाइम आती है हम जब वो ऐड देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं बार बार आ जाइए, मतलब ट्रस्टेबल ब्रांड है। और चौथी बार हम लोग वो प्रोडक्ट परचेस करने की सोचते हैं तो सेम वे कस्टमर भी वही सोचता है कि अगर हमारा ऐड पहली बार उसके पास जाता है तो वो भी इतना ट्रस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए दोनों जरूरी है, अच्छी इमेज भी और अच्छा कंटेंट भी। यस सर, एंड एब्सोल्युटली वीडियोस देखना लाइक पसंद नहीं करते आपको बोला, बट वीडियोस के थ्रू ही इलैबोरेट कर सकते हैं। एक इमेज में रिस्ट्रिक्शन आ जाता है सर, इतना भी हम लोग शोकेस नहीं कर पाते, बी इट इन बिजनेस। राइट सी इसके लिए यस हाँ बोलिए। एनी टाइम फ्रेम की मतलब व्यूअर्स को एंगेज करने के लिए इतने मिनट का ही एक वीडियो होना चाहिए सर? सी अगर मैं अपने कस्टमर के वीडियो बनाता हूँ तो इट इज नॉट मोर देन 30 सेकंड्स, 25 to 30 सेकंड का कस्टमर फीडबैक वीडियो बनाइए। क्योंकि आपकी ब्रांड के बारे में अगर आप बोलोगे उससे अच्छा थर्ड पार्टी पर्सन बोलेगा ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अगर आपको वीडियो इमेज बनानी है, वीडियो बनाना ही है, तो उसके लिए आप यूट्यूब यूज कीजिए, विच इज बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर योर प्रोडक्ट, और उसकी लिंक शेयर कीजिए। क्योंकि ज्यादातर मेरा ये देखा गया है कि अगर आपने कैंपेन के अंदर वीडियो डाला है तो उसका इम्पैक्ट मतलब रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ओके सर, एंड हैशटैग भी अभी काफी ट्रेंडी है, कोई भी पोस्ट आप करते हैं तो उसमें हैशटैग यूज करते हैं, तो हाउ यूजफुल एंड हाउ इम्पैक्टफुल इज हैशटैग, और मतलब कैसे यूज करें? सी हैशटैग आपका जो फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्यादातर हैशटैग ऐसे यूज कीजिए कि
ट्रेंडी हो, जैसे कि अभी रिपब्लिक डे गया, लोग रिपब्लिक डे को ज्यादा सर्च करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंडिंग हैशटैग आपको काफी सारी वेबसाइट के ऊपर से मिल जाएंगे। आप जैसे ही गूगल पे लिखेंगे कि ट्रेंडिंग हैशटैग, तो वहां से आप कॉपी पेस्ट करके आपके जो भी पोस्ट है उसे नीचे डाल दीजिए, तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। Fine. I guess that ends the set of questions, sir. Like we would have to come down at your institute physically. अगर आपके कोई courses हैं, आपके upcoming courses हैं, तो आप share कर सकते हैं, sir. जी डेफिनेटली। मैं क्या करता हूँ आजकल की सेगमेंट वाइज ही जाता हूँ। सेगमेंट वाइज मतलब अगर कोई फॉर्म है एक साथ किसको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है तो कॉर्पोरेट लेवल पे ही मैं सर्विस देता हूँ। मेरे इंडिविजुअल क्लासेस मैंने कम कर दिए हैं और ज़्यादातर मैं कंसल्टेंसी करता हूँ। लेकिन अगर जेसिस में किसी को भी सीखना है तो हम लोग नया बैच बना सकते हैं। केवल 5 लोगों का बैच अगर होता है तो हम लोग नया बैच इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 10 डेज का होता है, जैसे मैंने बताया। उसमें फेसबुक पूरा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, उसके अलावा ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, वो सारा गूगल मार्केटिंग, वो सारा कुछ मैं सिखाता हूँ। ओके सर। एंड इसका टाइम फ्रेम कितना होता है सर? लाइक टाइम फ्रेम इसका होता है 10 डेज का होता है और पर डे 1.5 months का उसका ड्यूरेशन होता है। Fine. Great. Thank you for such an insightful session, sir. Thank you very much. To take this further and to propose an official vote of thanks, I would like to invite our Vice President Training, JC Vrutan Patavale. JC Vrutan. Thank you so much, sir, for imparting a wonderful knowledge. And I am sure that all the viewers will utilize this knowledge and grow in their business. So thank you so much. And I would also like to thank our President, JC Ankit Modi, sir, for guiding us throughout this training. Thank you so much.